السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اللہ کا بندہ، اللہ کے بندی اور اللہ کے بندوں سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ اللہ نے ہم پر 5 چیز کو فرض رکھا ہے، 5 چیز کو فرض رکھا ہے۔ سب سے پہلے ہے پہلا کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا ہے نماز، اور تیسرا ہے روزہ، چوتھا ہے زکوٰۃ، پانچواں ہے حج۔ یہ 5 چیز ہم پر فرض ہے، جس میں سے غریب، امیر سے امیر 3 چیز کو بآسانی کر سکتا ہے، جو کہ کلمہ، نماز اور روزہ۔ یہ آسانی سے وہ کر سکتا ہے جو روزہ رمضان کے مہینہ میں ہے، کلمہ ہر روز پڑھنا ہے اور نماز ہر روز پڑھنا ہے۔ تو آپ لوگ یہ غفلت میں مت جیے کہ اللہ آپ لوگوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ معاف اسی کو کرتا ہے جو معافی مانگتا ہے۔ ماں اسی کو دودھ پلاتا ہے جو بچہ روتا ہے، سمجھے؟ اللہ کھانا اسی کو کھلاتا ہے جس کو بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو اس حساب سے جیسے 3 ٹائم کا کھانا آپ کا غذا ہے، آپ کا خوراک ہے، ویسا ہی 5 ٹائم کا نماز اور کلمہ اور روح کا غذا ہے اور روح کا کھانا ہے۔ روح کو سکون ملتا ہے جب بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ تو اس حساب سے ہمارے اسلام کے دین کے ماننے والے مسلمان بھائی اور بہن، المومن المومنات، المسلمین المسلمات، ان سبھی کے لیے یہ ہمارا ریکویسٹ اور بنتی ہے کہ پلیز ایک اللہ کے واسطے آپ لوگ اللہ کے طرف لوٹ آئیے۔ خاص طور پہ ہم لوگوں کو اسلام دین کی دعوت دے رہے ہیں، جس میں غفلت میں ہمارا خود بھائی، ہماری ماں، ہماری بہن، ہمارے بیوی اور ہمارے بچے نقصان اٹھا رہے ہیں، خسارے میں ہیں، جس کا نتیجہ ہے کہ اللہ کا رحم ہے، لاکھ رحم و کرم ہے، اللہ رحمان و رحیم ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اگر یہ توبہ کا دروازہ نہ ہوتا تو نہ جانے انسان پر کون ایسا عذاب آتا، وہ اللہ ہی بہتر جان رہا ہے۔ عذاب چھوٹا موٹا اللہ دیتا ہے آزمائش کے لیے، سدھرنے کے لیے، لیکن انسان اتنی غفلت، اتنی ڈھیٹ، اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اس چیز کو عبرت نہیں سمجھتا ہے، اس کو حاصل کرنا نہیں چاہتا ہے، اور اپنی بربادی اپنے ہاتھوں سے اٹھاتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ دیکھو اللہ ہمارے ساتھ کیا کیا۔ جبکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تیری ایک ماں دنیا میں جتنا تم سے محبت کرتا ہے، اس سے زیادہ میں رب خود اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اس حساب سے سمجھیے کہ اللہ کتنا بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ رحمان، اللہ رحیم، اللہ مالک، اللہ قدوس، اللہ سلام، اللہ مومن، اللہ محمن، اللہ عزیز، اللہ جبار، اللہ قہار، اللہ وہاب، اللہ رزاق، اللہ فتح، اللہ علیم، اللہ قابض، اللہ باسط، اللہ خافض۔ یہ سب اللہ کے بہترین نام ہے، اللہ کی صفت والا نام ہے یہ سب۔ پھر بھی انسان نہیں سمجھ پاتا، انسان غافل ہے انسان۔ خاص طور پر ہماری بہن جمشیدہ، ہماری بہن رسیدہ، ہماری بہن روزی، ہماری بہن مرشدہ، ہماری بہن شہیدہ، ہماری بہن حمیدہ، اور اس میں ایک مرد مکھیا انس بابو، اور ہماری ماں، ہماری خالہ اور ہماری ماں، یہ سب نقصان میں ہے، اور ہمارے بھائی بھی نقصان میں ہیں۔ یہ لوگ کیا جانے یہ لوگ کیسا ڈھیٹ ہو چکا ہے کہ ہم شروع سے کہتے آئے ہیں کہ سچ بولیے، سچ کا سہارا لیجیے،
सच बोलिए, सच रहिए, सच खाइए, सच पीजिए, सब चीज़ साफ सुथरा रखिए। ईमान साफ सुथरा, कपड़ा साफ सुथरा, खाना साफ सुथरा, रहना साफ सुथरा, जेहन साफ सुथरा। तो क्या जाने इन लोगों को क्या समझ में आता है। शायद इन लोग दुनिया के रंगीन दुनिया में खो चुके हैं, जो कि दुनिया यहाँ 4 दिन के जीने आए हो, जन्नत के हिसाब वाली दुनिया से। और इसमें भी कब मौत झपट्टा मार दे, ए रसीदा कोई नहीं देखने गया है। और ख़ास करके हमें तो इबरत बहुत अच्छी से लेना है, क्योंकि हाल ही फिलहाल हमारा बाप गया है इस दुनिया को छोड़कर। पहले हमारा दादा किया, पहले हमारी दादी गई, फिर हमारा दादा गया, फिर हमारा नाना गया, उसके बाद तुम्हारी दादी गई, उसके बाद तुम्हारा पापा गया। अगला नंबर किसका है वो तो अल्लाह को पता है। तो किसी गरूर और घमंड में मत रहो। जो अल्लाह पैदा किया है वो सब चीज़ को ख़त्म कर देगा। क़यामत उसी को कहते हैं ना, कि अल्लाह सब चीज़ को ख़त्म कर देगा, फिर से पैदा करके आखिरत में खड़ा कर देगा, फिर से सवाल व जवाब होगा, फिर जहन्नम और जन्नत की फैसला होगा। तो ये सब चीज़ सीखने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ इबरत लेने की ज़रूरत है। आप लोग 7 बजे तक सोते हो, फजर की नमाज़ छोड़ देते हो, हैं, बहाना लगाते हो कि नापाक हैं। नापाक देखो, नापाक ऐसे देखोगे तो दुनिया का हर आदमी है। जेहन गंदा है, पेट में पैखाना रखे हुआ है, पेशाब के थैली में पेशाब रखे हुआ है, तो पाक कब हुआ। लेकिन अल्लाह जो जरिया से पाक कर रहा है उस हिसाब से पाक होना है। जब नहाने से पानी से आदमी पाक होता है तो पाक है। जब पैखाना और पेशाब करने के बाद जब उसको धो लेते हैं तो पाक है। जब वजू बना लेते हैं तो पाक है। तो इस हिसाब से मर्द हमेशा पाक रहता है, औरत भी हमेशा पाक रहती है। फर्क यह है कि नापाकी के लिए मर्द को 2 चीज़ का सामना करना पड़ता है, औरत को कभी कभी 3 चीज़ का सामना करना पड़ता है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में पीरियड बोलते हैं, MC बोलते हैं, और अरबी में हालाते हैज बोलते हैं। तो ये चीज़ सिर्फ लेडीज़ को ही होता है जो बालिग हो, और महीना में 3 दिन, 4 दिन या 7 दिन होता है। तो उसी 7 दिन आप नापाक हैं, बाकी दिन आप पाक हैं। उस समय में भी आपका बॉडी नापाक है, आपका जुबान नापाक नहीं है, आपका दिल ईमान नापाक नहीं है। आप अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ सकते हैं, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ सकते हैं। सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़ सकते हैं। सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ सकते हैं। समझ गए। शैतान के धोखे में मत आइए कि आप नापाक हैं। ठीक है, हम पाक हैं कि हम नापाक हैं मैं जानता हूँ, मेरा रब जानता है। हम सच्चे हैं कि झूठे हैं मैं जानता हूँ, मेरा रब जानता है। हम अच्छे हैं कि बुरे हैं हम जानते हैं, हमारा रब जानता है। दुनिया का लोग जस्टिफाई करके नहीं देखा ना कि हम पाक है कि साफ है कि नापाक है। तो इस हिसाब से इंसान एनी टाइम पाक है। बस 3 चीज़ का ही ख्याल रखिएगा, एक हालाते हैज और पेशाब और पैखाना। वो लग जाए उस जगह पर, जिस जगह पर लगे उस जगह को धोना ज़रूरी है। उसके बाद आप एनी टाइम सही सलामत हैं, कोई मुश्किल कोई आपत्ति नहीं है। तो इस धोखे में मत रहिए कि खेत में गए घास करने तब गंदा लग गया तो नापाक होंगे। अरे जो जिस चीज़ पर अगर खेत में किसी ने पेशाब कर दिया, किसी ने पैखाना कर दिया, वो पैखाना नहीं लगा, उसके बगल से गुजर गए तो तुम पाक हो। वो पेशाब लगा हुआ भी है, उस पर हवा चल गया, 1 दिन 2 दिन हो गया तो पाक है। अल्लाह ने हवा से तो पाक करता है। पानी में जैसे पोखरा में पानी है, उसमें गंदगी धोता है लोग, लेकिन वो पानी क्यों पाक है? क्योंकि अल्लाह हवा चला के पानी को रिफाइन कर देता है, तो पानी पाक हो गया। तो ये दुनिया का जितना सिफत है सब हवा में है। तो इस हिसाब से है हमारी बहन, अपनी इज्जत आबरू को, हाया को दायरे में रख के एक अल्लाह की तरफ तवज्जो दो। देखो तुम अमीर नहीं हो, तुम धनिक नहीं हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास अल्लाह के दिन का इल्म ही होगा
तभी कोई दुनिया का कोई भी इंसान तुमको एक्सेप्ट करेगा कि चलो कुछ है चाहे नहीं हो, दीन इस्लाम तो है इसके अंदर में। कम से कम 5 वक्त का नमाज पढ़ती है, कुरान शरीफ पढ़ती है, अल्लाह का जिक्र करती है, 10-15 आयत याद है। अगर तुमको कोई लड़का वाला देखने आए और तुमसे सवाल कर दे कि ठीक है तुम 5 को सूरा पढ़ के सुना दो, क्या सुनाओगे मेरी बहन? तुम किसको क्या सुना पाओगे? फिर आज जो ढंगर आदमी होगा, देखो लेडीज़ को ब्याह करके ले जाता है लोग अपना नस्ल बढ़ाने के लिए, अपना वारिस बढ़ाने के लिए, और ले जाके जब तुम्हारा नस्ल में ही ऑर्केस्ट्रा वाला और नाचने वाला और गाने वाला रहेगा तो उसका नस्ल क्या सुधरेगा? सब साला चोर उचक्का पैदा हो जाएगा, सब वो चोर उचक्का पैदा हो जाएगा। तो इसके लिए किसी भी चीज़ को साफ़ होना, ईमान साफ़ होना, अच्छा होना, उसकी माँ की सिफत अच्छी होनी चाहिए। बाप जैसा भी हो, माँ सही है तो बच्चे एनी टाइम सही होगा, समझे? बाप पागल भी है तो पागल घर पे थोड़ी है, वो तो कहीं दुबई में है वो है। लेकिन माँ को सही होना ज़रूरी होता है। अगर आज हम तुमको एक जर्नली बात बताते हैं कि माँ किसी गैर मर्द के साथ ताल्लुकात बना रहा है, माँ किसी गैर मर्द के साथ ताल्लुकात बना रहा है और उसी चीज़ को बेटी देखेगी, 30 दिन देखेगी, तो 31वां दिन उसकी भी ख्वाहिश जागेगी तो वो भी मनाएगा। और जब बेटी जब देखेगा माँ को कि हमारी माँ भूखा रह करके भी, मजदूरी करके भी, लोगों का गुलामी करके भी, लोगों का बात गाली खा करके भी अपने ईमान और अपनी इज्जत के साथ सौदा नहीं किया है, तो इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन उसका बाल बच्चा भी ऐसा ही करेगा। ठीक है? अगर तुमको इस टाइप का परखना होगा तो अपने घर में से परख लेना, और नहीं तो कभी हमारे फैजान बेटा से माँ बात करके देख लेना। जिस तरह का उसका बाप का चाल बोलता है उसी तरह से वो भी बोलता है, बेबाकी, बेसोची समझी हुई बात। ठीक है? बेशक आपको हमारी बात खराब लगे, लेकिन मैं अपने बाप के घर का बात नहीं बोल रहा हूँ, या अल्लाह के दिन की बात बोल रहा हूँ, या अल्लाह के वास्ते बोल रहा हूँ कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। न कि हम तुम लोगों पे एहसान कर रहे हैं, और न तुम लोगों के सामने हम बड़का मौलवी, आलिम, कारी, फाजिल हैं, हम नहीं हैं, हम अना उम्मी, हम खुद जाहिल हैं। लेकिन इस चीज़ को समझने की विषय है, ये बहुत चिंता वाली बात है कि जिसकी माँ कुफ्ती होके कहे कि हमारी बेटी 7 बजे तक सोती है, ये बहुत अफसोसनाक बात है ये। ठीक है? अगर तुम खुद सोचो, खाली इस दिमाग में सोचो कि अगर तुम पर हम जर व जुल्म करें तो तुम क्या कहेगा कि हमारा गार्जियन इंतकाल कर गया है, तो इसके लिए हमारा भाई जर व जुल्म करता है हम पर, हमको कभी गाली बकता है, कभी हमको जलील करता है, कभी हमको बेइज्जत करता है, कभी हमको बोलता है कि बांध के छोड़ देंगे, घर में पेशाब पैखाना सब करवा देंगे उसी में। नहीं, सुनने में अच्छा लगता है आपको? हमें खुद अच्छा नहीं लगता है किसी को, इंसान को, किसी अल्लाह के बंदा को या बंदी को हम खुद जलील करें, हमको खुद अच्छा नहीं लगता है। अगर हम किसी को अपने फ़ायदे के लिए जलील करेंगे तो अल्लाह हमको भी जलील करेगा, कहीं ना कहीं करेगा। तो इस हिसाब से आप लोग हमारी बात को सुनकर एक अल्लाह के तरफ तवज्जो दे दो। जो मांगना है अल्लाह से मांगो, जो भी कामयाबी चाहिए, और अल्लाह दुआ रद्द नहीं करता है। अल्लाह अगर यदि दुआ रद्द करता है तो समझ जाना इसका सिला जन्नत में देगा, बिना हिसाब किताब का जन्नत देगा। ठीक है? आखिरत में। ठीक है? इतना कह के हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। वो आखिरी दुआना अल्हम्दुलिल्लाह, सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।